Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, time and again I've been saying, and every day, each passing day, I try to introduce some interesting vocabulary. Every second of my life. Whenever I'm thinking, even if I'm working, I'm doing household chores, or even if I'm outside at work, I always keep thinking what new should I provide to my viewers? What new vocabulary, what new things, what new words should I give to my viewers? So I came across this concept. We all have familiar, and we all have heard the different names that are given to the different stages of life. Like for an example, if a child, he's 0 to 2 years, we call him an infant. Okay, then a toddler, then the stage comes preschooler, schooler, adolescent. So you have come across, and you all are familiar with the different stages, and the name that are given to the different stages. But in today's video, I will introduce new words that are related to the mindset. क्या होता है जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है? अलग अलग नाम दिया गया है, इन्फेंट, चाइल्ड, अडोलेसेंट, टॉडलर, वट, है ना. लेकिन जो उसका दिमाग होता है ना, with the physical growth there is mental growth also, right, isn't it? So the mental growth has certain names to it. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या नाम दिया जाता है. Mindset of a growing child. All right, now when the child is from 0 to 2 years, जब बच्चे का जन्म हुआ है, from the his birth time till up to 2 years, उस एरिया या उस पीरियड को बोलते हैं द अब्जॉर्बर. Now what is absorber? Absorber होता क्या है? Absorb मतलब किसी चीज को ग्रास्प कर लेना, absorb कर लेना. बच्चे क्या करते हैं, है ना, आसपास जो उनके सराउंडिंग्स में हो रहा है, डोंट दे absorb, है ना. अपनी वो मदर टंग इसी से सीखते हैं, है ना. खाने का तरीका कैसे है वो सीखते हैं. So what are they doing? They are absorbing things. They are absorbing everything that is in their surroundings. ठीक है, तो उनका माइंड कैसे होता है? What is the term given to children of 0 to 2 years? Absorber. ठीक है. The brain is soaking in language, tones, facial expression. Each and everything बोलते हैं ना, बच्चा घर से ही सीखता है ना. कि अगर किसी बच्चे के बारे में जानना हो, उसके परिवार के बारे में जानना हो, तो बच्चे को देख लीजिए. ठीक है, तो वही बात है, अब्जॉर्बर. Then the stage 2 comes, जब बच्चा 2 से 4 साल का होता है. ठीक है, अब 2 से 4 साल का बच्चा है, एक्टिविटी करने लगेगा, थोड़ा थोड़े बातचीत करने लगेगा, वर्ड्स, the baby or the child will start uttering words. So this stage is called explorer because curiosity is at its peak. Now what is curiosity? Curiosity मतलब जिज्ञासा, है ना, कि ऐसे ये क्या है, मोबाइल क्या है, फैन ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो कैसे फैन कैसे चलता है, ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों नहीं चलता है, बस क्या नई नई चीजें देखता है. तो इसलिए मैंने लिखा है क्यूरोसिटी इज एट स्पीक एंड द टर्म दैट इज गिवन टू दीज यंग माइंड्स इज कॉल्ड एक्सप्लोरर. ठीक है, एक्सप्लोरर की नई नई चीजें, एवरी डे इज अ न्यू, दे गेट टू सी न्यू थिंग्स, दे टेंड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, है ना. छोटी छोटी इसको देख लीजिए, अगर मार्कर को भी, जैसे आई हैव अ डॉटर, she's going to be 16 months. She's going to be of 16 months, in a few days. So what does she do? Even she tries to find out कि ये ऐसे क्यों खुलता है और ये वापस ऐसे कैसे बंद हो जाता है. तो सिंपल से सिंपल चीजें, बिकॉज क्यूरियोसिटी एट इट्स पीक, तो वो एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, है ना. Then is the imitator. Now you need to understand the word imitator. Imitator means जैसे देखोगे वैसे ही इमिटेट करना. इमिटेट मतलब जैसे आप देख रहे हैं वैसे इमिटेट करना, है ना. तो 4 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनका माइंडसेट कैसे होगा? इमिटेट. दे आर इमिटेटर बिकॉज दे विल इमिटेट वट एवर दे हैव इन द सराउंडिंग्स. ठीक है, दे लर्न फ्रॉम व्हाट अडल्ट्स डू. ठीक है, स्कूल में ऑफकोर्स 4 से 6 साल का बच्चा हो गया है, स्कूल जाने लगेगा. ठीक है, प्ले में जाने लगेगा, तो अडल्ट्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, ऑफकोर्स फ्रेंड्स बनेंगे, है ना. they'll get to interact with their with other children in their class. So what are they doing? What will their mind be like? Mind will be imitator. Imitate करेगा, है ना. देख देख के बच्चे सीखते हैं. जैसे मेरा बच्चा when he was 3.5 years, I had admitted him into a pre-group in a play group. ठीक है, प्री स्कूलर.
So he really had this problem of he had no idea how to eat things, है ना. उसको चपाती तोड़ने में दिक्कत होती थी. लेकिन जब वो स्कूल जाने लगा ना, तो बच्चों को देख देख के उसने खाना खाना सीखा, है ना, by imitating things. ठीक है, he learned by imitating things like what the other children used to do. He started doing the same thing, है ना. So in that way he learned the concept of eating food. He learned how to divide chapatis and how to eat rice with the help of spoon. So what did he do? He imitated it. ठीक है, imitator. Next is the questioner. 6 to 9 years. अब बच्चा बड़ा हो रहा है, बेसिक चीजें सीख चुका है ना. अब ऐसे ये क्यों होगा, वैसे क्यों होगा. तो eager to learn and require clear answers. अभी तक तो थोड़ा बहुत जो समझा देते थे समझ में आ जाता था, है ना. जैसे अब 6 से 9 साल का बच्चा है तो वो क्या कहेगा, पूछेगा आपसे कि अच्छा ऐसा क्यों है. आसमान में जैसे आसमान में रात में ही क्यों मून दिखता है, दिन में क्यों मून नहीं दिखता है. ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स क्या जाते हैं मून में, क्या करते हैं जाके मून पे, है ना. कोई भी चीज़ है, कुछ भी छोटी सी चीज़ है ना. ये कार इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, ये कार इतनी सस्ती क्यों है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. चलना दोनों नहीं है, हाँ, चलना दोनों से ही है. सो द माइंड, देयर माइंड, वी कॉल दैट क्वेश्चनर बिकॉज दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, बिकॉज दे वांट क्लियर एंड दे रिक्वायर एंड दे वांट क्लियर आंसर्स, ठीक है, टू देयर क्वेरीज. नेक्स्ट इज द कंपेयरर. नाउ दिस 9 to 12 years children, now they become sensitive to praise and criticism. अब उनको समझ में आने लग जाता है कि ठीक है, अगर मैं अच्छा काम करूँगा, I will be praised by so and so, by my parents, by my teachers, by my friends. और गलत काम करने पे they are very much aware of this criticism also, कि उन्हें पता लगेगा कि उन्हें डांट डपट का, है ना, कि तुमने गलत काम कर दिया है. उन्हें समझ में आने लगेगा कि ठीक है, गलत काम करने पे डांट पिटती है and there are repercussions to it. All right. The child of 9 to 12 years, the mind of the child of 9 to 12 years is called the mind of a comparer. Okay. Then is the dreamer. This is the age 13 to 15 years. They become emotional intensity increases. ठीक है, physical development हो रही होती है, emotional development हो रही होती है. So dreamer में ना बच्चों का यही एक stage होती है कि children also decide कि I want to become this in life. I want to become that in life. Concepts clear हो जाते हैं अभी तक, है ना. Imitator, questioner, कंपेयर बन चुके हैं. अब इस स्टेज तक आने तक उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, है ना. तो उनका माइंड कैसा होता है, ड्रीमर, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज द डिजाइनर. ठीक है, अब उन्होंने ड्रीम तो कर लिया, है ना. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है, डिसाइड कर लिया, ड्रीम कर लिया, पर उसके लिए डिजाइन भी तो करना पड़ेगा. नीट का एग्जाम भी तो देना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी. बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, बेस्ट टीचर्स कौन से हैं, तो उसके लिए सब उनको डिज़ाइन चाहिए. तो उनका माइंड कैसा है, डिज़ाइनर, है ना. डिज़ाइनर क्यों, क्योंकि सब वो अरेंज कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे यहाँ से मुझे कोटा जाना है, या मुझे यहाँ से कोचिंग करनी है, या मुझे नीट की तैयारी करनी है, या मुझे IAS क्रैक करना है, वॉट एवर इट इज. ठीक है. तो 16 से 18 साल का बच्चा, उसका माइंड को बोलेंगे हम डिज़ाइनर. एंड द लास्ट एज इज 18 to 25 years. The bridge builder. Why the bridge builder? Because the bridge that he had created while dreaming, है ना, उसको फुलफिल करने के लिए वो जो ब्रिज बना था, है ना, आपके ख्वाब से और असलियत के बीच में जो ब्रिज बना था, है ना, वो उसने जब पूरा कर दिया, कंप्लीट हो गया, है ना. Young adults are turned into fully independent grown-ups or fully independent people, है ना, who are emotionally developed, who are physically developed, who are financially developed. They are not dependent on anybody else. ठीक है. 18 से 25 साल तक की बात हो रही है. ठीक है, 25 years तक. तो उनका माइंड कैसे है, द ब्रिज बिल्डर्स. दिस इज द vocab, or this is the term that is given to children falling between 18 to 25 years of age. So these were the words. I hope the words were new to you. ठीक है, and you found them interesting. वीडियो पसंद आया, please like, share and subscribe. Thank you for watching and being with me.